Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Student, as you know that we have started a lesson, historical and cultural places of Pakistan. So we have read few paragraphs of this lesson. Now open page number 97. The reading text, the heading of this reading text is Pakistan Home to Ancient Civilization, in which we are learning about the different ancient places, older civilization in Pakistan found in different provinces like Sindh, Punjab, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. The first place we have read, it is Bambor. It is in Sindh and it is the district is Thatta, and there are how many periods have been shown in this site? 3 periods जो है with शो किए गए हैं. The second site is Mohenjo-daro. As I told you, it has a meaning. The meaning is mound of death. ठीक है, ये भी किस में है? This is also in Sindh and it is located in Larkana district. ये भी Larkana district में है, सिंध में है. And this is the largest settlement of the ancient Indus Valley civilization है ये. इसके अलावा जो द थर्ड साइट जो है वो हमने पढ़ी थी, इट वॉज निंदोवरी, दैट इज़ इन बलूचिस्तान. ये बलूचिस्तान के सूबे में है. द डिस्ट्रिक्ट इज़ कलात एंड द वाटर सोर्स इसका क्या है? कुड रिवर है. सो ये हमने इसके साथ इसकी कुछ ना कुछ फैक्ट्स और कुछ इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ी थी. नाउ इट्स लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑफ द रिमेनिंग पैराग्राफ्स. फ्रॉम हियर आई विल गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. Let's begin reading. It is time now to go to Sahiwal before night falls. Early in the morning, we again get on the helicopter and go to Harappa in Punjab, about 24 kilometers west of Sahiwal. The site of this ancient city contains the ruins of a Bronze Age fortified city. The skeletons found in the ruins show that the city was destroyed due to wars and diseases like leprosy and tuberculosis. Harappa was built around 2600 BC and lasted till 1300 BC. From Harappa we head towards Taxila, meaning the city of cut stone in the Rawalpindi district of Punjab. It is situated about 32 kilometers northwest of Islamabad and Rawalpindi. The city probably came into existence in the late 2nd millennium BC and survived till the 5th century AD, when it was finally destroyed by the Huns. Earlier, the city was an important trade center, but later it lost its importance. The main ruins of Taxila are divided into 3 major cities, with each city clearly representing a different time period. The ruins of Taxila contain buildings and Buddhist stupas located over a large area. It is also believed that Taxila had one of the earliest universities in the world. So I am going to explain whatever we have read. It is time now to go to Sahiwal. Now they are moving, the author is moving towards Sahiwal, which is in province Punjab, before night falls, यानी रात गुजरने से पहले. Okay, and early in the morning again we get on the helicopter. ये helicopter में जो है वो सवार हुए and they are moving towards Harappa, that is in Punjab, and it is 24 किलोमीटर वेस्ट है साहिवाल से. तो मेन सिटी जो है वो क्या है यहाँ पर? साहिवाल, और इससे जो है वो 25 किलोमीटर फार अवे है. द साइट ऑफ दिस एंशियंट सिटी कंटेन्स द रुइंस ऑफ ब्रॉन्ज एज. ठीक है, जो ये जो साइट है यानी ये जो प्लेस है, इस ये जो कदीम जगह है, यहाँ पर जो है आपको जो है वो किसके रुइंस मिलेंगे? रुइंस कहते हैं रिमेन्स को, जो जो बाक़ियात होती हैं, जो कहते हैं किसी भी जगह की जो बाक़ियात होती हैं उसको कहते हैं रुइंस. और ये किस एज में मिलती है, कि कौन सी एज का यहाँ पर जिक्र है? ब्रॉन्ज एज का जिक्र है. देखिए ये जो दुनिया है इसको 3 पीरियड्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, और इसको फर्स्ट स्टेज जो कहलाती है वो स्टोन कहलाती है, उसके बाद ब्रॉन्ज कहलाती है और उसके बाद आयरन कहलाती है. उसमें भी सब स्टेजेस हैं, लेकिन मेनली जो है वो 3 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया है. स्टोन एज में क्या हुआ था कि स्टोन एज में हम इंसान जो है, जो ह्यूमन बीइंग था, वो लिव्स इन अ केव, और जो है वो दे कवर देयर बॉडीज़ विद लीव्स और द स्किन ऑफ द एनिमल से कवर किया करते थे, और इस तरह जो है वो रॉ जो मीट खाते थे. बहुत सारी ऐसी, यानी इसमें कोई इन्वेंशंस नहीं थी, सारा काम जो है वो मैनुअली होता था.
तो और जो है ये एक एज थी, एक टाइम पीरियड तक ये एज रही। फिर उसके बाद सिविलाइज्ड होना शुरू हुए, सेटलमेंट्स बनना शुरू हुई, आबादियाँ बनना शुरू हुई, अर्बनाइज्ड हुए। तो वो और उसमें जो है कुछ इन्वेंशन हुई जिसकी वजह से उस कुछ वेपन्स उन्होंने निकाले। तो वो वाली एज जो कहलाती है वो ब्रोंज़ एज कहलाती है। उसके बाद उस और रेवोल्यूशन आया, मशीन का दौर आया जिसमें जो है वो मशीनें बनना, बल्ब बनना ईजाद हुआ और पहिया बना। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो ये जो है बहुत सारी इन्वेंशंस हुई। तो ये दैट इज़ एज इज़ कॉल्ड द आयरन एज। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड दुनिया को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द इन्वेंशन और रेवोल्यूशन के लिहाज से जो वर्ल्ड है उसको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज एज के रूइंस मिलते हैं। एंड इट द सिटी, ये जो सिटी था वो कैसा था, देयर इज़ एन एडजेक्टिव फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मीन्स क्या होता है, ऐसा सिटी दैट इज़ सराउंडेड बाय हाई वॉल्स टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमी। यानी जो है पहले के सिटीज़ जो है वो उसकी चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी जाती थी टू मेड इट सिक्योर एंड स्ट्रॉन्गर, ताकि उसको महफूज और ताकतवर बनाया जा सके। तो ये फोर्टिफाइड सिटी था। यहाँ पर जो स्केलेटन्स हैं, जहाँ जो सारी ढांचे हैं जो यहाँ पर इनके रूइंस में जो मिले हैं, वो डैट शोज़ दैट कि ये वो क्या शो करते हैं कि रीज़न बताते हैं कि क्यों ये सिटी डिस्ट्रॉय हुआ था। इसके कुछ रीज़न्स हैं। एक तो फर्स्ट रीज़न ये है कि जंगों की वजह से यहाँ की आबादी, यहाँ की सेटलमेंट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। दूसरा इसका रीज़न ये है कि यहाँ दो डिजीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हो गई थी, वबा के तौर पे आ गई थी, लेप्रेसी एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। और ये दो थी। ये लेप्रेसी जो है वो स्किन डिजीज़ होती है, बहुत ही ख़राब बीमारी होती है जिसको हम जुज़ाम की बीमारी कहते हैं। एंड ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो ये थ्रॉट वो चेस्ट सिवियर चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है जिसको उर्दू में तिब्बत कहते हैं। हड़प्पा वॉज बिल्ट अराउंड 2600 BC में ये बिल्ट हुआ था एंड लास्टेड, और ये डिस्ट्रॉय हो गया था 1300 BC में। From Harappa we head towards Texla. अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? The author is moving towards Texla, another ancient city. इसको क्या कहा जाता है? Meaning इसका क्या है? The city of cut stone. As I told you in the previous about the previous place, that was Mohenjo-daro, कि उसका भी कोई meaning था. It was Mount of Dead, as you remember. अच्छा, ये कहाँ है? रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में। रावलपिंडी जो है वो कौन से प्रोविंस में है? इट इज़ इन पंजाब। इट इज़ सिचुएटेड अबाउट 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। आपको पता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जो है वो ट्विन सिटीज़ कहा जाता है, यानी जुड़वा शहर कहा जाता है, क्योंकि दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस है और बहुत ही छोटे छोटे ये शहर हैं। इसी वजह से इनके 32 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है ये। द सिटी प्रोबेबली केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये शायद कब आया था? सेकंड मिलीनियम, यानी 2000 साल। मिलीनियम कहते हैं 1000 ईयर्स को, मिलीनियम कहते हैं। BC में हुआ था। और कब तक इसके ये यानी सर्वाइव रहा था? कब ये डिस्ट्रॉय हुआ था? 5th सेंचुरी AD में हुआ था। व्हेन इट वाज फाइनली डिस्ट्रॉयड बाय द हुन्स। और इसको किसने डिस्ट्रॉय कर दिया था? हुन्स ने। अब यहाँ हुन्स कौन है? हुन्स जो है ये एक नेशन का नाम है। और इनके लोग कैसे होते थे? बहुत ही जंगजू किस्म के होते थे, वॉरियर्स थे, और बहुत ही ज़्यादा इनका जो है इन्फ्लुएंशियल पीपल थे ये लोग, और जहाँ जाते थे वो तबाही करते थे। इनसे इवन रोमन्स और यूरोपियन लोग जो है वो क्या थे? खौफजदा थे। सो दिस सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द हुन्स earlier. Now they are giving the extra information about this city. Earlier the city was an important trade center. ये बहुत बड़ा तजारती मरकज़ था। ट्रेड मीन्स होता है तजारती। बट लेटर इट लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस, यानी इसकी अहमियत ख़त्म होती चली गई। रीजंस होंगे, और जो है ट्रेड सेंटर्स बन गए हैं और प्लेसेस को इससे ज़्यादा अच्छे होंगे। सो दैट्स वाई द मेन रूइंस ऑफ टेक्सला आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सिटीज़ में इसके रूइंस को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। और जो विद ईच सिटी क्लियरली रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट टाइम पीरियड। और हर सिटी जो है वो क्या कर रहा है? एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। द रूइंस ऑफ टेक्सला कंटेन्स बिल्डिंग्स हैं। इसमें क्या आपको मिलेगा? इसके खंडरात में, इसकी रिमेनिंग्स में आपको क्या मिलेगा? आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, बुद्धिस्ट स्टूपास। अब देखिए यहाँ पर एक रिलीजन का नाम जो फॉलोअर्स हैं एक रिलीजन के, उनका नाम बुद्धिज़्म जी रिलीजन है। नेम ऑफ द रिलीजन, उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको क्या कहते हैं? बुद्धिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स भी मिलेंगी, और जो बुद्ध मत, जिसको उर्दू में बुद्ध मत कहते हैं, उनके स्टूपास भी मिलेंगे।
अब ये स्टूपास क्या होते हैं? स्टूपास जो है वो एक डोम शेप की, जैसे गुंबद नुमा जो है वो बिल्डिंग होती है, और ये किसकी इबादत गाह कहलाती है? बुद्धिस्ट लोगों की इबादत गाह कहलाती है, वर्शिप प्लेस ऑफ फॉर बुद्धिस्ट, लोकेटेड ओवर लार्ज एरिया। ये बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको बुद्धिस्ट स्टूपास लार्ज एरिया पे। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट टैक्सला हैड वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर एक बात और भी मेंशन है दैट नीड टू बी लर्न एंड दैट नीड टू बी नोन, कि जो है यहाँ पर एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी है जिसको कहा जाता है द यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सला, वो है। मैं इसमें इट इज़ नॉट, दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट गिवन हियर, बट आई एम टेलिंग यू कि ये 2500 2500 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसको वर्ल्ड की अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने आज जो है वो क्या पढ़ा है? आपने दो सिटीज़ के बारे में पढ़ा है, पंजाब के जो एंशिएंट सिटी हैं, वन इज़ हड़प्पा एंड अदर इज़ टैक्सला। ठीक है, आपने इसको पढ़ा, आप इसमें टैक्सला का नाम की मीनिंग भी पढ़े, द सिटी ऑफ कट स्टोन। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यू आर लर्निंग डे बाय डे, और इन्फॉर्मेशन है दैट नीड्स टू बी रिमेंबर, आपको ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि इट विल बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, या डिटेल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपसे पूछी जाएंगी। सो प्लीज़ स्टूडेंट, आप जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको दोबारा पढ़िए और जो है उसको लर्न भी कीजिए। इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफ़िकल्ट, चेक इट, वॉच द वीडियो अगेन। Student, today you have one more talks. It's such a interesting, and you will find it interesting. That is Iqra Join Height. अब जो है we are moving towards the next pages. अच्छा, before starting before giving the homework, I'm telling you why the writing is important. कि हैंड राइटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे जो है इससे घबराते हैं कि हमें ये क्यों दिया जाता है। इट्स नॉट, डोंट टेक इट एज अ बर्डन, इसको बहुत ही इन्जॉय कीजिए, क्योंकि हैंड राइटिंग जो होती है, जो लिखाई होती है, वो आपकी पर्सनालिटी का एक इम्प्रेशन होती है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी आपके पास है। और दूसरी ये कि आप अगर एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखें तो आपके पास आप जो है हायर क्लासेस की तरफ जा रहे हैं। अब आपके कुछ सालों के बाद, 2 साल के बाद, आप जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो आप बैठेंगे, तो वहाँ पर भी आपकी जो स्कूल को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके वर्क को जो रिप्रेजेंट करेगी वो आपकी हैंड राइटिंग ही करेगी। सो इट इज़ वेरी गुड टू लर्न हैंड राइटिंग सीरियसली एंड प्रॉपरली। ओके, सो ओपन पेज नंबर, वी आर ऑन पेज नंबर 7। द प्रीवियस पेजेस वी हैव डन इन फर्स्ट टर्म, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। यहाँ पर आप देखिए कि रूल्स भी लिखे हुए हैं, राइटिंग रूल्स भी हैं, वर्ड्स आर गिवन। फर्स्ट मैंने आपकी फॉर योर ईज, फॉर योर कन्वीनियंस, आई हैव डन फॉर यू द फर्स्ट लाइन, द रिमेनिंग 3 लाइन्स विल बी डन बाय योर सेल्फ, आप खुद करेंगे। नंबर 7, 8, 9 एंड द लास्ट पेज इज़ until page number 10 you will have to do your handwriting. Okay, the words are given, आप इसको pronounce कीजिएगा, पढ़िएगा और बहुत अच्छी हैंड राइटिंग कीजिएगा, and inshallah it will be checked by your teacher when you will come. Okay student, kindly note down the homework, read the lesson and complete pages 7 to 10 of Iqra Join Handwriting Series 3. This is your homework. ओके, बिफोर लीविंग द क्लास मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, छोटी सी बात, कि आप रोज़ाना उन दुआओं का ज़रूर एहतमाम कीजिए जो आपके स्कूल में सुबह पढ़ाई जाती थी, जो सप्लीकेशंस आपको जो तरतीब बताई गई है, काइंडली उसको फॉलो कीजिए। दिस इज़ फॉर योर प्रोटेक्शन, और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए दुआ कीजिए, मे अल्लाह सेफ अस फ्रॉम दिस डिज़ीज़, फ्रॉम दिस पेंडेमिक, और जो है अल्लाह ताला हमें जो है आफ़ियत वाली ज़िंदगी और आफ़ियत वाली मौत अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। एंड टिल देन इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।